Good morning, class 9. We are going to continue the same chapter, that is what is democracy, why democracy. Now today we will discuss about the arguments against democracy. Yesterday we had started this topic and today we will talk about this. So what are the arguments against democracy? All of you know that democracy is considered as the best form of government, but it has few drawbacks as well. Everything in this world has some advantages and disadvantages. So democracy, being the best form of government, also has some of the disadvantages. So we shall discuss those disadvantages. What are those disadvantages? The first disadvantage is the political instability. Political instability means, all of you know that many of the elections there is a coalition government. For example, in some of the elections, if a majority party is not able to win the majority number of seats, then that party should take the help of some other small parties to form the government. And if they are able to form the government by the help of those parties, it is not necessary that those parties would be giving the support to that particular party for a longer time. Maybe there would be any argument, or maybe there would be any thought difference between those parties at a particular bill or at a particular incident. So in future that party could take back the support as a result that the government should fall. So it is, you can say that कि कोई पार्टी अगर सरकार में आ जाती है, कोलिशन गवर्नमेंट बनाकर बहुत सारी पार्टीज मिलकर बना लेती हैं, तो उस पार्टी का भविष्य स्टेबल नहीं होता, क्योंकि इन फ्यूचर कभी भी कोई भी डिफरेंसेस हो सकते हैं उन पार्टीज के बीच में, और डिफरेंसेस हो सकते हैं तो फिर पार्टी सपोर्ट वापस ले सकती है, एज ए गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। तो ऐसी गवर्नमेंट से कोई भविष्य नहीं होता, और डेमोक्रेसी में और इस तरह की गवर्नमेंट बनना काफी आम बात है, इसलिए कह सकते हैं कि इंस्टेबिलिटी रहती है। ठीक, लैक ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब नैतिक पतन होना। Most of the political parties try to win the elections with the help of wrong practices. गलत practices, malpractices, they used to do malpractices, they used to bribe the voters, they used to threaten the voters. Such type of things used to happen in many of the elections, and the party just want to get the power, they use such type of tricks, which is against the moral practices of the election. So that we can say that there is lack of morality. Now the third, unnecessary delay. What happens? Many of the bills take a longer time, because in the parliamentary process there is a long procedure to frame any type of law. There is a long procedure, because in the parliament, discussion, debates, meetings, such type of things, first a bill is passed by the lower house, and the bill is sent to the upper house, and that bill is sent to the president. If the president asks the bill for reconsideration to the lower house, then it is again sent to the lower house, and the lower house again pass that bill, and again it is sent to the Rajya Sabha, again it is passed by Rajya Sabha and sent to the president. So it is a very long process. So it causes unnecessary delays. Now the fourth heading is wrong decisions. Sometimes it could कोई भी पार्टी हो सकती है जो wrong decisions ले, कभी-कभी गलती हो जाती है कुछ लोगों से। अब आप लोगों से भी गलती हो जा सकती है कि आप maybe you choose a wrong government. You have the power to choose a government after every 5 years during the general elections, but it is not necessary that the person or the candidate you had selected would be the right candidate. Maybe वो हो सकता है कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा आपके साथ बिहेव करे, लेकिन जैसे ही उसको पावर मिल जाए वैसे ही वो अपने असली रंग में आ जाए। तो हो सकता है कि रॉन्ग डिसीजंस, और कभी-कभी जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट रूल करती है वो भी कभी-कभी रॉन्ग लॉज बना देती है जो लोगों के फेवर में नहीं होते। ठीक है, करप्शन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। करप्शन तो डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज के समय में कोई भी हमारा काम जो है वो ऑनेस्टी से नहीं हो सकता।
ये करप्शन के लिए बहुत हद तक पार्टीज भी रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है और गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वी आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन। वी वांट अ करप्शन फ्री सोसाइटी, बट देयर इज अ क्वेश्चन दैट आर वी डू नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ करप्शन? Yes, we are doing. When we are going to the government office, we are not able to get our work done. Then we used to give the bribe to that particular government officer, which is not right. So we are promoting corruption. So corruption is the problem of the society, of a democratic society. There should be no corruption in a democratic society. People's ignorance. Next heading is people's ignorance. People also ignore many types of things. They used to most of the people in India, especially the people living in villages, they are not that much educated. As a result, what happens? Any candidate who is going to their house for asking them to vote, but in that particular case, that particular candidate used to manipulate them because they are not that much literate. So ज़्यादा पढ़े लिखे होने की वजह से उनको बहुत आसानी से अपने जाल में फंसा लिया जाता है, तो और people ignore कर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ignore कर जाते हैं. If you are going to give the vote in an election, what are the things you consider? Most of the people in the rural areas used to consider the caste, used to consider that person belonging to his community or not. No, such type of things should not be there. क्या उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनका एजुकेशन लेवल क्या है और वो कितने अच्छे तरीके से लोगों को मैनेज करना जानते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या रही है, ये सब चीजें हम लोग इग्नोर कर जाते हैं और हम लोग ऐसे लोगों को वोट दे देते हैं जो उस वोट के लायक नहीं होते. और डिवीजन ऑफ सोसाइटी, अब ये जब हम इग्नोर करते हैं चीजों को तो इससे डिवीजन होती है सोसाइटी. जब हम कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे वोट देना स्टार्ट कर देते हैं तो इससे क्या होता है, समाज में विभाजन क्रिएट होता है. When we start to give the vote on the basis of religion or community or caste or creed, that is not right. It is not a, it could not be a healthy democracy. In a healthy democracy, it is not the norms of the democratic society that they should give vote on the basis of caste or creed or religion. क्यों? क्योंकि अगर कास्ट और क्रीड और रिलीजन के नाम पे हम वोट देंगे तो एक तरीके से हम सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे कि ये मेरे कास्ट की पार्टी है, ये मेरे रिलीजन की पार्टी है. ये सारी चीजें क्या है, समाज को विभाजित कर रही है, लोगों के दिलों में दूरियां पैदा कर रही है, लोगों को अलग अलग वर्गों में जबरदस्ती बांटा जा रहा है. वी आर अ इंडियन सिटीजन और हमारी ये इंडियन सिटीजन होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड गिव द करेक्ट पर्सन, वी शुड गिव द वोट टू द करेक्ट पर्सन. ओके, तो हमारे प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि हमें किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट की जाति और धर्म नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि वो उसकी योग्यता क्या है, वो हमारे डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम कर सकता है या पास्ट में उसने क्या काम कर रखा है. ये सारी चीजें अगर हम इग्नोर नहीं करेंगे तो देखिए हमेशा सोसाइटी यूनाइटेड रहेगी. और यही चीजें अगर हम इग्नोर करते रह जाएंगे तो कास्ट और कम्युनल लाइंस पे हमें डिवीजन सोसाइटी का फेस करना पड़ेगा, जिसका रिजल्ट होगा राइट्स. जो दंगे फसाद आजकल होते हैं वो इसी कारण से होते हैं, क्योंकि कास्ट और क्रीड के नाम पे पॉलिटिकल पार्टीज डिवाइड कर देती है सोसाइटी को और सोसाइटी आपस में लड़ती रहती है. ठीक है, और वो लड़ने का लाभ उठाते रहते हैं, कास्ट और कम्युनिटी के नाम पे वोट्स मांगते रहते हैं, अपील करते रहते हैं वोटर्स को, वोटर्स उनके बात को मानते रहते हैं और वोटर्स उनको कास्ट और क्रीड के नाम पे वोट देते रहते हैं. ठीक है, तो हमें ये चीजें चेंज करनी, फ्रीक्वेंट चेंजेस भी होते हैं. ठीक है, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात है कि बहुत जल्दी चेंजेस होते हैं. ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट कोई योजना लागू करती है. फॉर एग्जाम्पल
if a particular party starts a particular project, what happens if a new political party wins the elections in the next elections, they came to power, then they used to abandon such things. क्या करते हैं, कोई भी चेंज इंट्रोड्यूस किया, कोई भी प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया किसी पार्टी ने, तो नई पार्टी जब पावर में आएगी तो उस प्रोजेक्ट को बंद कर देती है और नया प्रोजेक्ट चालू कर देती है। वो नया प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले दूसरे इलेक्शन हो जाते हैं, फिर नई पार्टी आ जाती है, वो उस प्रोजेक्ट को खत्म कर देती है। तो बार बार चेंजेस होते रहते हैं, इससे लोगों का डेवलपमेंट स्टॉप हो जाता है। अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो, बीच में बंद हो जाए, फिर दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो, बीच में बंद हो जाए, तो इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि सोसाइटी को कोई डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी ये है कि फ्रीक्वेंट चेंजेस ना करें, हम कोशिश करें अगर कोई पार्टी अच्छा काम कर रही है तो हम उसे कंटिन्यू करें ताकि वो उसको समय मिले कुछ चेंज लाने का। ठीक है, अब ये तो हो गई आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब हम बात करेंगे आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के जो जो ड्रॉबैक्स थे वो तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, लेकिन कुछ एडवांटेजेस भी तो हैं, तो अब हम वो डिस्कस करेंगे। क्या एडवांटेजेस हैं डेमोक्रेसी? अच्छा, डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज्यादातर देशों के द्वारा मानी जा रही है। जो कंट्रीज पहले डेमोक्रेटिक नहीं थी वो भी अब डेमोक्रेसी को अपना रही है। तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी में कुछ तो खास होगा, कोई तो अच्छी बातें होंगी तभी तो लोग डेमोक्रेसी को अपना रहे हैं। तो क्या अच्छी बातें हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि आपको मालूम है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है। तो लोगों द्वारा चुनी जाने का मतलब है कि लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। उस जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चुन के आती है उसकी पूरी तरीके से रिस्पांसिबिलिटी लोगों के प्रति होती है। अगर कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट लोगों के लिए अच्छा काम नहीं करेगी तो उसे तुरंत चेंज कर दिया जाएगा, और यदि कोई गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा, उसे दोबारा सत्ता में चुना जाएगा। तो अकाउंटेबिलिटी तय होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। अगर जैसे फॉर एग्जांपल चाइना में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, चाइना की गवर्नमेंट अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे, वहां पे एक ही पार्टी हमेशा, कोई भी इलेक्शन हो या ना हो, वही पार्टी हमेशा चुन के आ जाएगी, तो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है लोगों की। और लोग चाहे जितना भी कोशिश कर ले तो कोई चेंज नहीं ला पाएंगे अगर ये पार्टी खुद कुछ नहीं चलेगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अपोजिशन होता है, अपोजिशन हमेशा अच्छी तरीके से सरकार की नीतियों को आलोचना करता है, सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है, लोग उसे हटाने के पक्ष में होते हैं। कभी कभी सरकार की सत्ता चली जाती है, तो सत्ता चली जाती है तो उसके अंदर ये भावना जागृत होती है कि हम लोगों के लिए जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें सरकार में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो अकाउंटेबिलिटी तय होती है। नाउ सेकंड पॉइंट इज क्वालिटी डिसीजन मेकिंग। देखिए, अगर कोई एक व्यक्ति सारे डिसीजन लेता है तो गलत डिसीजन ले सकता है, लेकिन अगर 100 इंटेलिजेंट लोग साथ में बैठ के कोई कॉमन निर्णय में पहुंचे तो वो निर्णय काफी अच्छा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रोसेस होता है, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स की अपनी अपनी आइडियोलॉजीज होती है, वो आइडियोलॉजीज डिस्कस होती है, डिबेट्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, वो साथ तो उन सबके हेड्स आपस में मिलते हैं, सबके मस्तिष्क एक जगह पे एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपने अपने मस्तिष्क लगते हैं और फिर उसके बाद एक कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है जो एक क्वालिटी डिसीजन होता है। और क्यों क्वालिटी डिसीजन होता है? क्योंकि सभी रिप्रेजेंटेटिव जो लोगों द्वारा चुने हैं उनको मौका मिलता है और एक अच्छा डिसीजन लिया जाता है। अगर किसी को मौका ना दिया जाए और जबरदस्ती कोई एक व्यक्ति सारे डिसीजन ले तो हो सकता है कि वो डिसीजन रॉन्ग हो जाए। तो इसीलिए कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक क्वालिटी डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट होती है। ठीक, अब बात करते हैं बेटर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तीसरा बेटर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। जो रिलीजियस ग्रुप्स, जो सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसे ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाती है, क्योंकि उसे ये मालूम है कि अगर सोसाइटी में टेंशंस क्रिएट होंगी, सोसाइटी में कोई भी रिलीजियस या सोशल ग्रुप्स की टेंशंस क्रिएट होंगी तो वो हमारे हित में नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सबके वोट चाहिए। ये जरूर ठीक है कि लोग कास्ट और क्रीड को अपीज करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें दूसरे ग्रुप्स के वोट नहीं चाहिए।
कोई भी निष्कर्ष निकलने वाला नहीं। इसलिए जरूरी ये है कि खासकर इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री जहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन रहती है, तो इट इज मोस्ट नेसेसरी दैट there should be a good conflict management. Democracy provides a better form of government that could manage conflicts very easily. ठीक है? Now dignity of citizens, सबसे बड़ा सबसे important जो आपकी डिग्निटी, सिटीजन्स की डिग्निटी बनती है, इज्जत बनती है समाज में। अच्छा, आपको मैंने बताया चाइना में क्या है? चाइना में डिग्निटी नहीं है सिटीजन्स की, क्योंकि सिटीजन्स के डिसीजंस का कोई वहां पे रिस्पेक्ट नहीं, ना पाकिस्तान में रिस्पेक्ट है, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज में जो भी रूलिंग गवर्नमेंट हो है वो कहीं ना कहीं पपेट की तरह एक्ट करती है। ठीक है, रूलिंग, अब जैसे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो आर्मी के पपेट, आर्मी के ही डिसीजंस को वो लोग आगे बढ़ाते हैं। तो कह सकते हैं कि रूलिंग गवर्नमेंट है, लोगों द्वारा चुनी गई है, लेकिन उसके पास खुद का कोई अधिकार नहीं है। तो अगर इस तरह की कोई गवर्नमेंट नहीं करती तो वो कोई अच्छा लोगों के सिटीजंस की डिग्निटी को डिनोट नहीं करता। और चाइना में भी जब लोगों को चुनने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है तो फिर डिग्निटी किस बात की? सिटीजंस के पास कुछ तो पावर होनी चाहिए कि कुछ लोगों में चुन सके। उनके पास चाइना में कोई ऑप्शन ही नहीं, चाइना में एक ही पार्टी, तो उसमें सिटीजंस की कोई, लेकिन यहाँ पे इंडिया में लोगों की डिग्निटी है, क्योंकि इंडिया में पीपल्स आर द रियल रूलर्स। डेमोक्रेसी में पीपल आर द रियल रूलर्स। जो वास्तविक शासन होता है वो लोगों के हाथ में होता है, क्योंकि जो भी सरकार रूल कर रही होती है, दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल टू द पीपल एंड दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल। तो उन्हें पीपल को जवाब देना पड़ेगा, और इफ दे आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल दे विल बी चेंज। सो सिटीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भारत में। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उनमें सिटीजंस बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, क्योंकि अगर सिटीजंस के विशेस को फुलफिल नहीं कर पाए तो यही सिटीजंस उन्हें सत्ता से हटा देंगे, क्योंकि ये सत्ता का जो सुख वो भोग रहे हैं वो सिटीजंस की वजह से भोग रहे हैं। तो सिटीजंस की डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिटीजंस बहुत ही ज्यादा वैल्यू रखते हैं डेमोक्रेसी में। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ करेक्टिव मेजर्स। पांचवा पॉइंट है करेक्टिव मेजर्स लेने की ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। देखिए, डेमोक्रेसी में अगर हम गलत डिसीजन ले भी लेते हैं, गलत रूलर्स को चुन भी लेते हैं, तो हमारे पास उस गलती को करेक्ट करने का मौका होता है। हमारे पास वी आर हैविंग द ऑप्शन टू करेक्ट आवर मिस्टेक इन द नेक्स्ट इलेक्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम गलत सरकार को चुन लेते तो उस सरकार को हमको जीवन भर झेलना पड़े। हमारे पास एक उचित समय पे हमें वो मौका दिया जाता है ताकि हम अपनी भूल को सुधार लें। ठीक है, तो अदर बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? बेटर चांसेस ऑफ गुड डिसीजंस होते हैं डेमोक्रेसी में। ठीक है, एक्सेप्टिंग म्यूचुअल कोऑपरेशन, सबका कोऑपरेशन लेके सबकी कोएग्जिस्टेंस को मद्देनजर रखते हुए सारी चीजें होती हैं। सब चीजें मिलजुल के की जाती हैं, कोई भी अलोन कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, सब चीजें आपस में एक साथ मिलजुल के। करेक्शन होता है, एरर्स करेक्ट कर सकते हैं हम। डिग्निटी होती है सिटीजंस की, तो मैंने बता दिया। और भारत में किस तरह की गवर्नमेंट है? भारत में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, तो अब डेमोक्रेसी का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।